اس طریقے سے 400 سال تک اس کے سر پر جوتیاں پڑتی رہی. 400 سال تک جوتیاں پڑے کسی کے سر پر، وہ سر سلامت نہیں رہ سکتا ہے. مورخین بیان فرماتے ہیں اتنی جوتیاں پڑی 400 سال کے اندر، اتنی جوتیاں پڑی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور اس کا دماغ باہر آ گیا، اور اس اعتبار سے اللہ نے اس کو ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے ہلاک کر دیا اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا، اے دنیا والوں، اگر تمہارے اندر خدائی پیدا ہو جائے، اگر تمہارے اندر اپنے آپ کو رب کہنے کا دعویٰ پیدا ہو جائے تو نمرود کے واقعے سے درس عبرت لے لینا اور یہ سمجھ لینا کہ نمرود 1000 سال تک زندہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا تھا، مگر ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے. المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئے ہم اور آپ کو سننے اور سنانے سے بیشتر عقیدت و احترام کے ساتھ نگاہوں میں گنبد خضرا بسا کر حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ محربار میں جس طریقے سے میں آپ حضرات کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا چاند نکل چکا ہے اور قربانی کے حوالے سے بیانات چل رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے یہاں تک بیان ہو چکا تھا کہ آپ نے جب اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تو چونکہ وہ نمرود کا دور تھا، اس نے آپ کو ان تمام چیزوں سے روکنا چاہا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے پیغام کو عام کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں لوگوں کو دو چیزیں جو سب سے اہم ہوتی ہیں، ان دونوں چیزوں کی قربانی کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے. ایک تو انسان کی جان سب سے اہم ہوتی ہے اور دوسری اولاد. ان دونوں قربانیوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے. آئیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنی جان کی قربانی اللہ کے خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر کس طریقے سے آپ نے اپنی جان کی بازی لگائی. نمرود کے سامنے جو اپنے وقت کا بادشاہ تھا، حقانیت کو رکھنا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا، اپنی جان پر کھیلنا، یہ سب سے بڑی بات تھی. چنانچہ جب آپ نے اس سے مناظرہ کیا وہ شکست کھا گیا، ہر اعتبار سے ناکام ہو گیا، تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ لیا کہ اب ان کا کیا کیا جائے، حضرت ابراہیم کے بارے میں کیا سلوک کیا جائے. تو درباریوں نے یہ رائے دیا کہ ان کو ایک آگ میں جلا دیا جائے، ایک آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ تمام معاملہ رفع دفع ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ قانون ان لوگوں نے پاس کیا. اب نمرود نے یہ پیغام بھیجا اور اپنے تمام سپاہیوں کو بلا کر کے اس نے تمام لوگوں کو یہ آرڈر دیا کہ ایک بہت بڑی چہار دیواری تیار کی جائے اور اس کے اندر لکڑیاں ڈالی جائیں اور آگ بھڑکا دیا جائے اور پھر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے. مورخین بیان فرماتے ہیں کہ اتنی لمبائی اور چوڑائی تھی اس چہار دیواری کی جس میں آگ تیار کیا گیا تھا کہ ایک مہینے تک تقریباً صرف اس میں لکڑیاں ڈالی گئی تھی. پوری رعایا اس میں لکڑیاں
1 महीने के बाद जा करके वो पूरी बाउंड्री भरी थी। अंदाज़ा फरमाइए कितनी बड़ी चहार दीवारी रही होगी। सिर्फ इसलिए तैयार किया जा रहा था ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दिया जाए, और जो भी नमरूद की गुस्ताखी करता है उसको भी उसमें डाल दिया जाए, इसलिए उसने इस चीज़ को तैयार करवाया था। अब आप देखें आगे का मंजर क्या होता है। नमरूद ने जब इन तमाम चीज़ों को तैयार करवा लिया, मुअर्रिखीन बयान फरमाते हैं उस आग की भड़क का ये आलम था, उस आग की तपिश का ये आलम था कि उसके ऊपर से जो परिंदे गुजरते थे वो भी जलकर राख हो जाया करते थे, वो खाकिस्तर हो जाया करते थे। और उस आग का आलम ये था कि उसके करीब कोई नहीं जा सकता था, लोग झुलस जाते थे, लोग उसके इर्द गिर्द जो रहते थे वो बस्तियां छोड़कर इधर उधर चले गए थे। अब नमरूद मरदूद को उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डालना था, तो जाहिर सी बात है जब इतनी अहम आग तैयार की गई थी करीब से नहीं डाला जा सकता था। उसकी एक मशीन तैयार की गई जिसको मिंजनीक कहा जाता है। उस मशीन का ये मामला था कि किसी भी चीज़ को दूर से फेंका जा सकता है, उसी मिंजनीक मशीन को ला करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंकने की तैयारी की गई। अब मामला पूरा क्लियर हो चुका था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला जाएगा। अभी ये मामला हो ही रहा था, हज़रत जिब्रील अमीन हाज़िर खिदमत होते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के खलील कोई ज़रूरत हो तो मुझसे बताइए, कोई हाजत हो तो बताइए। अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बिला शुबह हमें ज़रूरत है, हमें हाजत है, मगर तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जिसकी ज़रूरत है वो समीअ व बसीर है, वो हमें देख रहा है, जानता है वो मेरा रब्बे जलील। आग में पड़ता है उसका खलील। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब देख रहा है, मैं उसकी रज़ा की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर रहा हूँ। मुझे आग में जो डाला जा रहा है मैंने अपनी मफाद के लिए कोई काम नहीं किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अब मिंजनीक के जरिए से उस आग में डाल दिया गया। तमामी लोगों ने ये मंजर देखा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया और फेंक दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये हुक्म नाफिज हुआ। अल्लाह ने कुरान के अंदर इस चीज को बयान फरमाया, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में उस आग के ताल्लुक से ये पैगाम भेजा। जाहिर सी बात है अल्लाह के दस्ते कुदरत में तमाम चीजें हैं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। चाहे आग हो, चाहे पानी हो, चाहे दरिया हो, चाहे नाला हो, चाहे पहाड़ हो, दरख्त हो, तमाम चीजें अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अल्लाह ने हुक्म दिया उस आग को, वो आग सलामती वाली हो गई, वो आग ठंडक हो गई। अब नमरूदियों ने सोचा हमने इतने दिनों से मेहनत किया है, आग में डाल दिया है, अब चलो देखा जाए क्या हाल हुआ है। वो लोग बहुत खुश थे कि जलकर राख हो चुके होंगे, जलकर इस दुनिया से खत्म हो चुके होंगे। अब नमरूद मरदूद एक बुलंद टीले पर चढ़ता है, बुलंद मकाम पर वो चढ़ा ताकि देखा जाए कि क्या हाल हुआ है। अब जब नमरूद मरदूद उस टीले पर चढ़ा तो उसने क्या मंजर देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहाँ पर मौजूद है वो पूरा इलाका, वो पूरी जमीन फूलों से लबरेज हो चुकी है और आपके इर्द गिर्द आग जल रहा है। नमरूद मरदूद ने पूछा ये आपके साथ कैसे हुआ, आखिर क्या माजरा है। अल्लाह के खलील इरशाद फरमाते हैं, हादा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। अब नमरूद मरदूद ने सोचा कि हो सकता है बीच में आग जलना बाकी रह गया हो और ये उसी में पड़ गए हो। नमरूद मरदूद उसी इमारत से कहता है, क्या तुम वहां जा सकते हो जहां पर आग जल रही है, यानी आपके इर्द गिर्द जहां पर आग जल रही थी उसने वहां जाने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरा भरोसा था, जो रब मुझे बीच की आग से बचा सकता है वही रब मुझे किनारे की आग से भी बचा सकता है, इसलिए कि उसका हुक्म नाफिज हो चुका है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस बगल की आग में जाते हैं, वहां भी आग महफूज रहते हैं। नमरूद मरदूद हैरानो परेशान हो गया। यहाँ पर रुक कर एक और चीज की वजाहत में कर दूं आप लोगों की जानकारी के एतबार से। जब अल्लाह ने ये हुक्म लागू किया था, ये आग अल्लाह ने ये हुक्म नाफिज किया था और अल्लाह ने आग को ये हुक्म दिया था कि आग सलामती वाली हो जा, आग ठंडक वाली हो जा, तो सिर्फ वो आग जो नारे नमरूद की थी सिर्फ वो सलामती नहीं हुई थी, सिर्फ वो ठंडक नहीं हुई थी। मुअर्रिखीन बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के हुक्म का आने के बाद पूरी दुनिया में जितने आग उस वक्त तक मौजूद थे तमाम आग ठंड वाली हो गई थी, तमाम आग के अंदर बुरूदत आ चुकी
थी, किसी आग के अंदर जलाने की तपिश नहीं बरकरार थी, तमाम आग ठंड हो चुकी थी। ये अल्लाह के हुक्म का मामला था। अब नमरूद मरदूद वहां से देखकर हैरान परेशान होकर लौटा। मुअर्रिखीन ने यहाँ पर इस बात का तस्करा किया है कि जब नमरूद मरदूद उस टीले पर चढ़ा था देखने के लिए, तो उसके साथ उसकी बेटी भी चढ़ी थी। और जब उसकी बेटी ने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग ने कुछ नहीं कर पाया और वो सलामत हैं, तो अब उस नमरूद की बेटी के अंदर ईमान का जज्बा पैदा हो गया। उसने सोचा वाकई ये अल्लाह के पैगंबर हैं, एक आम इंसान नहीं हो सकते हैं। नमरूद की बेटी के अंदर इस्लाम का जज्बा पैदा हो गया और वो भी अल्लाह के खलील का कलमा पढ़ करके उसी आग में कूद गई। अल्लाह के खलील का कलमा ये था, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। ये आग, ये कलमा पढ़कर वो भी उसी में कूद गई। और मुअर्रिखीन बयान फरमाते हैं क्योंकि उसके अंदर ईमान आ चुका था, अल्लाह के खलील की मोहब्बत आ चुकी थी, जब उसने आग में छलांग लगाया तो वो भी आग से महफूज रही। हजरात, जब वो वापस अपने बाप नमरूद के पास आती है तो उसके बाप ने कहा, तुमने अल्लाह के खलील का कलमा पढ़ा है, तुमने अल्लाह को माना है, तुमने मेरे मजहब को छोड़कर के उनके मजहब को अपनाया है, तुम्हें उस मजहब को छोड़ना पड़ेगा। हजरात, उसकी बेटी उस बात को तस्लीम नहीं करती है। पहले तो उसने शांति से मनवाया, हर एतबार से उसने कोशिश किया, मगर उसकी बेटी राजी नहीं हुई। और उसके बाद नमरूद मरदूद ने उस पर जुल्म सितम करना चालू किया, उसको परेशान करना चालू किया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और उसकी बेटी जिसका नाम रग़फ़ा था उसको लेकर के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर देते हैं। अब उसकी बेटी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहने लगती है। कुछ दिनों के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस नमरूद की बेटी का निकाह अपने बेटे के साथ कर दिया। अंदाजा फरमाएं कलमा पढ़ने की बरकत और इस्लाम में दाखिला लेने की बरकत कितनी अहम होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आप पहले से मुसलमान हैं और जो इस्लाम में दाखिल हो जाता है उसकी बरकत देखिए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की बेटी का निकाह अपने बेटे से किया तो उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे से, मुअर्रिखीन बयान फरमाते हैं तकरीबन 20 औलादें हुई और जितनी औलादें पैदा हुई वो सब के सब अल्लाह के नबी हुए। ये कलमा की बरकत है। अल्लाह के खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बेटी का निकाह अपने बेटे के साथ किया। अल्लाह ने ये बरकत किया कि उससे 20 बच्चे पैदा हुए और सब के सब अल्लाह के पैगंबर पैदा हुए। ये होती है इस्लाम की बरकत, इस्लाम में दाखिला लेने की बरकत। हजरात, अब यहाँ से चूंकि नमरूद मरदूद हर एतबार से शिकस्त खा चुका था, उसकी कोई नहीं चल रही थी, वो अपने आप को माबूद क्यों कहलवा रहा था, इसकी एक बड़ी वजह है। पहले के ज़माने के लोग बहुत लंबी उम्र तक जिंदा रहते थे। नमरूद मरदूद की उम्र 1000 साल थी और उसके अंदर अकड़ इस वजह से आई थी, अपने आप को खुदा इसलिए उसने कहलवाया था कि 1000 साल तक तो वो जिंदा रहा, तो वो सोचा कि इतनी लंबी उम्र तक ये कोई आम इंसान नहीं जिंदा रह सकता है। और 300 साल का ऐसा अरसा गुजरा उसकी जिंदगी में कि वो कभी बीमार ही नहीं हुआ। तब उसको एहसास हुआ कि वाकई में कोई अलग चीज़ हो, मुझे खुदाई दावा करना चाहिए और उसने इन तमाम चीज़ों का दावा किया। मुअर्रिखीन बयान फरमाते हैं जब उसके अंदर ज़्यादा अनानियत आ गई तो अल्लाह ने 3 मरतबा फरिश्तों को भेज करके उसको राह रास्त पर लाना चाहा और फरिश्तों को भेज करके अल्लाह ने ये पैगाम भिजवाया कि नमरूद से जाकर कहो। फरिश्ते आकर कहने लगे कि अल्लाह ने ये पैगाम भेजा है, अगर तुम अपने खुदाई दावे से बाज आ जाओ, अल्लाह को तस्लीम कर दो और तमाम बुराइयों से दूर हो जाओ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें माफ भी कर देगा और तुम्हारी सल्तनत को हमेशा बरकरार रखेगा। मगर चूंकि जब फरिश्ते हाजिर हुए तो उसने कहा मैं खुदा हूँ, मैं किसी और को तस्लीम नहीं कर सकता। अब चूंकि उसने हर एतबार से उसकी किस्मत खराब हो चुकी थी, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरीके से दीगर कौमों को हलाक किया था, इन लोगों पर भी अज़ाब नाज़िल किया। आप जब उठाएंगे अंबियाए किराम की तारीखों को मुताला करेंगे, उनकी तारीखों को पढ़ेंगे तो जिन कौमों ने अल्लाह के किसी पैगंबर की शान में तौहीन की या गुस्ताखियां की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें तरह तरह के अज़ाब में मुब्तला कर दिया। किसी कौम को अल्लाह ने बंदर बना दिया, बनी इसराइल का तज़किरा कुरान के अंदर मौजूद है। किसी कौम का अल्लाह ने
तूफान नाजिल कर दिया। इस एतबार से लोग तहस नहस कर दिए गए। अब चूंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान में भी नमरूद ने गुस्ताखी किया था, उसकी पूरी कौम ने गुस्ताखी किया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने की वजह से अल्लाह ने नमरूदियों पर भी अजाब नाजिल किया। इनका अजाब कैसा था? इनका अजाब पूरी दुनिया वालों के लिए दर्स इबरत है। इन पर कोई ऐसा वैसा अजाब नाजिल नहीं हुआ था कि पानी का, आग का, इन तमाम चीजों का, बल्कि अल्लाह ने मच्छरों का अजाब नाजिल किया था। मच्छर क्या होते हैं? अगर उनको ऐसे लेकर मसल दिया जाए तो खत्म हो जाते हैं, मगर चूंकि नमरूद अपने आप को खुदा समझ रहा था, उसके तकब्बुर को तोड़ना था और दुनिया वालों को ये बताना था तुम कितनी भी तरक्की कर ले जाओ मगर तुम अल्लाह के आगे कमतर ही रहोगे और अल्लाह के शान के आगे तुम्हें अपने आप को छोटा बनना पड़ेगा। कभी तुम कितने भी बड़े हो जाओ तुम खुदाई दावा नहीं कर सकते हो। अगर करोगे तो नमरूद का अंजाम देख लेना। वो अपने आप को खुदा कहलवा रहा था, वो अपने आप को खुदा मनवा रहा था, मगर उसका अंजाम क्या हुआ? एक लंगड़े मच्छर ने उसको हलाक कर दिया। अब पूरी, चूंकि सिर्फ नमरूद पर अजाब नहीं नाजिल हुआ था, पूरे नमरूदियों पर अजाब नाजिल हुआ था। अल्लाह ने रोए जमीन पर इतने मच्छरों को भेज दिया था, इतने मच्छर आ गए थे कि पूरी रोए जमीन पर से मच्छर नजर आ रहे थे। मुअर्रिखीन ने यहाँ तक लिखा है इतने मच्छर थे कि उन मच्छरों की वजह से आसमान का सूरज छुप गया था और रोशनी जमीन पर नहीं पड़ रही थी। इतने मच्छर आ चुके थे। अब इतने मच्छर आ चुके हों तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस कौम का आलम क्या रहा होगा। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि इस कदर उन मच्छरों ने उन नमरूदियों को नोचा, इस कदर नोचा कि उनके जिस्म पर सिर्फ हड्डी बची थी, न गोश्त बचा था, न कोई खून सलामत था। इस एतबार से अल्लाह ने उन नमरूदियों को हलाक किया। और वो जो मच्छर आए हुए थे उन्हीं में से एक लंगड़ा मच्छर जा करके नमरूद के नाक में घुसा और वहां से घुस करके उसके दिमाग में बेबस हो गया। नमरूद 400 साल तक हुकूमत किया और 400 साल के बाद ये मामला पेश आया। 400 साल तक वो लंगड़ा मच्छर उस नमरूद के नाक में घुसकर दिमाग में काटता रहा। ये 400 साल का अरसा था। बहुत परेशान हुआ, इलाज मुआलजा किया गया, बड़े बड़े हकीम और तबीब आए, इलाज नहीं हो पा रहा था। एक ऐसा हकीम था जो उसको जुल्म सितम से बहुत परेशान हो चुका था। उसने कहा मौका अच्छा है, एक ऐसा इलाज बता दिया जाए कि बदला भी हल हो जाए और उसके बाद इसकी हलाकत भी हो जाए। अब वो पहुंचा और उसने कहा चमड़े की जूती लिया जाए और उससे सर पर मालिश किया जाए, ठोकर लगाया जाए, उससे तुम्हारा इलाज हो जाएगा। जब भी उसके सर पर जूती पड़ती थी तो अंदर का मच्छर खामोशी से बैठ जाता था और उसको थोड़ी राहत मिल जाती थी। तो वो ये सोचता था कि मेरा इलाज हो रहा है। अब जाहिर सी बात है थोड़ा सा पड़ता फिर उसे आसानी मिल जाती। इस एतबार से मुअर्रिखीन बयान फरमाते हैं जितने लोगों पर उसने जुल्म सितम किया था सब लोगों ने अच्छा बदला लिया और जो आता इधर से एक जूती लगाता, उधर से आता एक जूती लगाता। इस तरीके से 400 साल तक उसके सर पर जूतियां पड़ती रही। 400 साल तक जूतियां पड़े किसी के सर पर, वो सर सलामत नहीं रह सकता है। मुअर्रिखीन बयान फरमाते हैं इतनी जूतियां पड़ी 400 साल के अंदर, इतनी जूतियां पड़ी कि उसका सर फट गया और उसका दिमाग बाहर आ गया। और इस एतबार से अल्लाह ने उसको एक लंगड़े मच्छर के जरिए से हलाक कर दिया और दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया, ऐ दुनिया वालों अगर तुम्हारे अंदर खुदाई पैदा हो जाए, अगर तुम्हारे अंदर अपने आप को रब कहने का दावा पैदा हो जाए तो नमरूद के वाक़े से दर्स इबरत ले लेना और ये समझ लेना कि नमरूद 1000 साल तक जिंदा था, अपने आप को खुदा कहलवा रहा था, मगर एक लंगड़े मच्छर के जरिए से उसको हलाक कर दिया गया। अगर तुम्हारे अंदर भी ये चीज पैदा हो गई तो तुम भी हलाक कर दिए जाओगे। और यही आलम है, बड़े बड़े आए और जिन्होंने अपने आप को खुदाई दावा किया, अल्लाह से आगे बढ़ना चाहा, वो हलाक कर दिए गए। रोए जमीन पर वो सलामत नहीं है, बर्बाद कर दिए गए। ये हाल हुआ नमरूद का और उसकी पूरी कौम का। आप अंदाजा फरमाएं नमरूद मरदूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान में भी गुस्ताखी कर चुका था और उसके साथ साथ उसने अल्लाह की शान में भी गुस्ताखी किया था और अपने आप को खुदा भी कहलवाया था। आप अंदाजा फरमाएं हजरत यहाँ से नमरूद का खात्मा हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम किस बीवी से पैदा हुए? आपकी पहली बीवी थी हजरत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा। उनसे बहुत सारे औकात निकल गए मगर कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। आप बाबिल में पैदा हुए थे। बाबिल शरीफ से आप हिजरत कर गए शाम की तरफ और जब शाम आप जा रहे थे तो रास्ते में एक ऐसा मकाम आया कि वहाँ का एक बादशाह था। जो भी रास्ते से गुजरता था
اور اس کے پاس اگر کوئی حسین عورت ہوتی تھی تو اس کو اپنے اختیار میں لے لیتا تھا. اس نے سپاہیوں کو لگوا دیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے ہجرت کر گئے بابل سے تو اسی راستے میں وہ علاقہ پڑا اور سپاہیوں نے آپ کو قید کر کے اور آپ کی بیوی کو اس بادشاہ کے حوالے کر دیا. جب حوالے کیا تو وہ بادشاہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو لے کر ایک حجرے میں گیا. اللہ نے اس حجرے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے شیشے کے مانند کر دیا. آپ نے پورا واقعہ دیکھا, آپ ملاحظہ فرما رہے تھے. اور جو ہی وہ بادشاہ کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھایا اللہ نے اس کے ہاتھ کو خشک کر دیا, کمزور کر دیا, لاغر بنا دیا, ناتما کر دیا. وہ معافی مانگنے لگا. حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے معاف کر دیا. پھر اس نے ہاتھ بڑھایا. اس اعتبار سے چند مرتبہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور وہ سمجھ گیا کہ واقعی یہ کوئی عام بندی نہیں ہے, یہ اللہ کی بندی ہے. اس نے توبہ کیا اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنی ایک کنیز حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کو حضرت سارہ کی خدمت میں دے دیا. یہ وہی حضرت حاجرہ ہیں جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. حضرت سارہ کی خدمت میں اس بادشاہ نے دیا اور حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہیں دے دیا اور اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ نکاح میں آ گئی. اب بہت دنوں تک آپ کی اولاد نہیں ہوئی تھی. اللہ کے خلیل علیہ السلام نے دعا کیا, ربی ہب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے ایک صالح اولاد عطا فرما, ایک نیک بچہ عطا فرما. اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمائی. آپ چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے. اس کے بعد بڑھاپے کے عالم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو چونکہ حضرت سارہ جو آپ کی پہلی بیوی تھی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت حاجرہ جب بچے کو لاڈ پیار کرتی تو وہ رشک کرتی تھی. انہوں نے یہ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, ان دونوں حضرات کو لے جا کر الگ جگہ پر آپ کر دیجئے. اور اللہ کا حکم بھی نافذ ہوا کہ حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر ایک سنسان میدان میں کر دیجئے. دراصل یہ ایک حکم تھا مگر اس کے پیچھے جو سبب تھا, جو ذریعہ بننا تھا, وہ کعبہ معظمہ کی تعمیر تھی اور کعبہ معظمہ کو آباد تھا, خانہ کعبہ کی تعمیر تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہیں پر ان لوگوں کو چھوڑا جہاں آج کعبہ معظمہ موجود ہے. اس سے پہلے وہ چٹیر میدان, سنسان, ہریالی کا نام و نشان تک نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں پر لے جا کر کے ان دونوں کو چھوڑا اور تھوڑا سا کھجور پانی وغیرہ دے کر وہاں سے روانہ ہوئے. تھوڑی دور پر آپ پہنچے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اے پروردگار عالم, میں نے اپنی اولاد کو ایسی وادی میں بسائی ہے جہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں, وادی غیر ذی زرع ہے, تاکہ وہ نماز قائم کریں اور اللہ اور ان کے دل کو لوگوں کے دل کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کے لیے پھل عطا فرما. یہ تین دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. آج وہ کعبہ اور وہ مکہ معظمہ جو اسمارٹ سٹی بنا ہوا ہے اور ہر طرح سے پھل اور فروٹ کی فراوانی ہے اور ہر طرح سے کوالٹی کے اعتبار سے ایک نمبر کا ہے, کیا آپ نے کبھی اندازہ لگایا؟ وہ ہمیشہ سے نہیں ہے. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو چھوڑ کر وہاں پر آئے تھے وہ چٹیر میدان تھا, ہریالی نہیں تھی, کوئی ذرہ وہاں پر نہیں اگ رہا تھا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جو پھل پوری دنیا میں نہیں پائے جاتے ہیں وہ پھل آج مکہ معظمہ میں پایا جاتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا نتیجہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے دعا کر کے آپ واپس رخصت ہو گئے. تھوڑی دور جب پہنچے اور پھر آپ اپنے گھر واپس آ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اپنی بیوی اور اسماعیل کے لیے تھوڑا سا کھجور توشہ وغیرہ دیا تھا, کتنا چلتا ختم ہو گیا. اب حضرت حاجرہ پریشان ہوئی اور پانی کے لیے آپ نے اس پہاڑی سے اس پہاڑی پر چلنا چالو کیا. صفا اور مروہ بہت عظیم پہاڑ ہے, قرآن میں اس کا تذکرہ ہے, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ پہاڑیاں نشانیاں ہیں. کیوں نشانیاں ہیں؟ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تھی اور آپ کو پیاس لگی تھی, حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں انہی دونوں پہاڑوں کے درمیان چلی تھی اور 7 چکر آپ نے لگایا تھا اور اللہ نے حضرت حاجرہ کی سنت کو برقرار رکھا. آنے والے نسلیں اس وہاں پر دوڑ لگائیں گی اور جب تک اس دوڑ کو پورا نہیں کریں گی حج کی ادائیگی مکمل نہیں ہوگی. اللہ نے اس چیز کو برقرار رکھا. جب 7ویں مرتبہ حضرت حاجرہ اس پہاڑ پر گئی تو آپ نے کیا منظر دیکھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جہاں پر ایڑی مبارک ہے وہاں سے پانی کا چشمہ نمودار ہوا ہے. چونکہ اللہ پر بھروسہ تھا, حضرت حاجرہ کو
दो कि जिस रब ने मुझे यहाँ पर भेजा है वही मेरी हिफाजत फरमाएगा और तमाम चीजों का इहतमाम फरमाएगा। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वापस आई और जो पानी बह रहा था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी मुबारक से, आपने उसको रोकना चालू किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर हजरत हाजरा ने उस पानी को रोका न होता और आपने ज़मज़म न कहा होता तो वो पानी पूरी दुनिया की जरूरतों के लिए काफी हो जाता। अंदाजा फरमाए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम शेरखार बच्चे हैं, उनकी ये करामत है, उनका ये मौजज़ा था। और हजरत हाजरा ने उस वक्त ये जुमला इरशाद फरमाया था, ज़मज़म, अल्लाह ने उस ज़मज़म के लफ्ज़ को पूरी दुनिया में आम कर दिया और क़यामत तक उस पानी का नाम ज़मज़म हो गया। उस ज़मज़म के नाम की वजह यही है कि हजरत हाजरा की जुबान से वो निकला था। ज़मज़म के माने सुरियानी जुबान में होते हैं रुकने के, और वो पानी जब हजरत हाजरा ने कहा वहीं पर रुक गया। ये हजरत हाजरा की भी करामत थी। आप अंदाजा फरमाएं, जो अल्लाह के लिए अपने आप को वक्फ कर देता है, अल्लाह पर पूरा भरोसा होता है, तो चाहे वो जंगल में हो चाहे बयाबान में हो, हर एतबार से अल्लाह हिफाजत फरमाता है।